till today till 1 o'clock only. Okay, that you receive your MSBT ID password or not. Okay, so many student is reply on the group. So remaining student reply they are receive the ID password or not. Okay, and second things, MSBT examination survey form, Google form is I also share before 2 days. So remaining student who did not fill the MSBT survey examination means you are uh, willing to give your examination from home or from institute. Okay, so if there is any student who is not received their ID password, they reply with their enrollment number, name, and reply that they receive their ID password or not receive their ID password. Okay. So these two messages reply on the group is very important so that we plan accordingly. Okay. So today uh, this lecture is organized for your MSBT examination related problem. Okay. So whatever the rules and regulation we have discussed, you have to follow for giving your examination, MSBT examination. Okay. What key points you keep in your mind during the examination? Okay. So tell your friend remaining student must join the lecture immediately. Okay. Uh, Deshmukh sir. Deshmukh sir. हेलो. हाँ मिश्रा सर. हेलो. सर हाँ सर. स्टार्ट स्टार्ट करूँ मैं. हेलो. Sir, can I proceed? Hello, sir, can I यस सर, proceed? यस सर, यस यस सर, प्रोसीड नाउ. Okay. So, students, this is the notification regarding your examination. Okay. So, what point you keep in your mind during the examination? I tell you now. So, see, these are the warning messages. Before that, if you are willing to give your examination from home, then you have a device with front camera enabled. Means you give the examination from your mobile phone or your laptop. But what is the necessity? Basic necessity is that the device should be front camera enabled. Okay, so that your face during the examination must be visible in the screen. Okay, so and before that you have to check you have a proper data connection and data pack so that during the examination your data is not finished. Okay, first of all these the basic things you have to
check before starting the examination. If you not checking all these things, then what happen? You start the examination and your data is finished during the examination, and you are not complete your examination. What happened? Your examination is not completed due to the insufficient data. Okay, so before starting your examination you have to check these things. Your camera is properly work, front camera is properly works, so that your face is visible during the examination. Okay, so these are the warning messages which you get. Okay, maximum three warning messages allowed. After that, your exam is ended and you are blocked for the examination. Okay, so you will take care you doesn't receive any warning message from the supervisor. Okay, so what are these warning messages? You can see you will be blocked for malpractice if you do not adjust light so that your image is visible that window on the examination screen. So मीन्स आप जिधर भी बैठ रहे हैं एक लाइट रूम में बैठिए जहाँ पे प्रॉपर लाइट आपके फेस पे रहे ताकि आपका फेस प्रॉपरली विजिबल हो. ठीक है, डार्क रूम में नहीं बैठना है, अंधेरा करके नहीं बैठने का है कि आपका फेस विजिबल नहीं हो सके. अगर ऐसा होता है इन केस कि आपका फेस प्रॉपर विजिबल नहीं है ड्यू टू दी insufficient light, then you get this warning message. Okay, and you will be blocked for the malpractice if you are not seen on the screen again. ठीक है, अगर क्या कहते हैं कि आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट किया और आपका फेस स्क्रीन पे विजुअल है, लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ देर के बाद आपका फेस स्क्रीन पे विजुअल ही नहीं हो रहा है, यानी दोबारा आप गायब हो गए स्क्रीन के सामने से. ठीक है ना, तो भी आपका क्या कहते हैं कि एग्जामिनेशन ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, you will be blocked for the malpractice if you do not correct camera position. ठीक है, आपका मतलब जो है वो फ्रंट फेसिंग कैमरा होना चाहिए कि साइड में बैठे हैं, या फिर क्या कहते हैं कि प्रॉपर आपका जो कैमरा है आपको पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा है. इस केस में भी आपका एग्जामिनेशन ब्लॉक हो जाएगा. नेक्स्ट, you will be booked for the malware practice if you do not remove the cover over camera. ठीक है, क्या है कि कुछ भी आपका कैमरा रहता है, कैमरे के सामने अगर कवर है और आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या कहते हैं कि तो भी आपका वो आपका वार्निंग मैसेज आपको इसके अगेंस्ट मिलेगा. ठीक है, तो आपके साथ क्या हो सकता है ये देखिए कि इन केस द एग्जामिन फेल टू complete in the spin of the wing worn for more than 3 times under malpractice. Number one, during the online examination of a subject course. ठीक है ना, अगर आपको 3 warning messages, you receive the 3 warning message, then you are blocked for the examination. ठीक है, फिर आपका पूरे एग्जामिनेशन के लिए या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इट इज दिस डिसीजन इज टोटली अंडर द एमएसबीटी कंट्रोल. ठीक है, आपका पूरे टोटल एग्जामिनेशन के लिए आपको ब्लॉक करते हैं या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ब्लॉक करते हैं. दिस डिसीजन इज टोटली अंडर द एमएसबीटी कंट्रोल. ओके, नाउ ही RC shall be levied to a punishment of cancellation of performance of the examination in that subject of course for the ongoing examination. मतलब आप
पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपका एग्जामिनेशन ब्लॉक किया जा सकता है, या फिर पूरे एग्जामिनेशन के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए भी आपको ब्लॉक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको मेन क्या प्रैक्टिस करना है कि आप ऐसी चीजें आपका ना हो सके, ठीक है ना। तो ये जो आपका A to D है, दिस इज बेस्ड ऑन द कैमरा, ठीक है। कि अगर आपका फेस प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, आप डिम लाइट में बैठे हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, सो दीज आर दी बेस्ड ऑन योर कैमरा। तो ये वार्निंग मैसेज 1 में आता है, ठीक है ना, कि आप प्रॉपर विजुअल नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग योर कैमरा। सो नेक्स्ट, this is for the examiner observe in the possession and use of the communication device, electronics, gadget, mobile phone, smartwatch, tablet, iPad, earphone, etc. during the examination. मीन्स अगर क्या कहते हैं कि आपका ये आपके पास कोई नोट्स है, सब्जेक्ट नोट्स है, या फिर आपका टैबलेट यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, कोई अदर स्मार्टफोन गैजेट यूज करते हैं, ईयरफोन यूज करते हैं। मतलब ईयरफोन यूज करने का मतलब ये है कि आप किसी से अपने एग्जामिनेशन, अपने पेपर के बारे में टॉक कर रहे हैं, सो यू हैव टू अवॉइड दीज गैजेट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। Okay, so what happen if is that then you get a warning message, you will booked for the malware practice if you are again seen in the position of electronics device gadget not permitted during the examination। मतलब किसी तरीके का आप बुक नहीं रख सकते, नोट्स नहीं रख सकते, आईपैड, स्मार्टफोन और आपका ईयरफोन का यूज परमिटेड नहीं है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट, एग्जामिन ऑब्जर्व इज पोजीशन एंड रेफरिंग टू बुक्स। ठीक है, ये देखिए बुक्स आ गया, बुक्स, नोट्स, वेब सोर्स आर एनी अदर मटेरियल आर मीन्स टू रिट्रीव आंसर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। मतलब आप बुक्स देख रहे हैं या फिर नोट्स देख रहे हैं और वहां से आप आंसर कॉपी कर रहे हैं, देन दिस इज आल्सो नॉट अलाउड। ठीक है, अगर आपके कैमरे में ये दिखता है, क्योंकि आपको प्रॉपर जितनी देर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जितनी देर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं उतनी देर अगर क्या कहते हैं कि आपके हाथ में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। कि अगर आपको ये विजुलाइज होता है, अगर ये विजुलाइज होता है कि क्या कहते हैं कि आप आंसर कहीं से सर्च करके आप यूज कर रहे हैं, देन दिस इज आल्सो अ वार्निंग मैसेज। ठीक, आपको वार्निंग मैसेज मिलेगा इसके रिगार्डिंग। यू विल बी booked for the malware practice if you are again seen in the position of book, notes, web source are not permitted during the examination। ठीक है ना, तो ये इस तरीके का आपको फिर मैसेज मिलेगा। एडिशनल पर्सन, नेक्स्ट, अभी क्या है कि कोई भी एडिशनल पर्सन नहीं आना चाहिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन में। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि एडिशनल पर्सन आपके कैमरे के सामने आता है तो भी आपको वार्निंग मैसेज मिलेगा। ठीक है, क्या है, यू विल बी बुक फॉर द मॉलवेयर प्रैक्टिस इफ यू आर अगेन सीन विद द एडिशनल पर्सन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। मतलब कोई और आपकी हेल्प कर रहा है या आपके साथ कैमरे में दिख रहा है, यू आर टॉकिंग टुगेदर, देन यू आर गेट अ वार्निंग मैसेज रिगार्डिंग दैट। ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है क्या, इन केस ऑफ एग्जामिन फेल टू कंप्लीट इवर आफ्टर बीइंग द वार्न फॉर टू मैसेज। अगर ये आपका जो सेकंड नंबर का मैसेज है कि आप बुक रीड कर रहे हैं या फिर आप क्या कहते हैं कि अदर स्मार्ट डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो अगर ये मैसेज आपको 2 टाइम्स ही मिलता है, कैमरे का मैसेज आपको 3 टाइम्स मिलेगा तो आपका ब्लॉक होगा। लेकिन अगर आपको ये मैसेज
जो सेकेंड नंबर के हैं, ये मैसेज अगर 2 टाइम्स ही मिलता है तो भी आपका ब्लॉक हो जाएगा एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो आपको किस तरीके का वार्निंग मैसेज मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने मल्टीपल वार्निंग मैसेज मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर बुक यूज करते हैं या स्मार्टफोन यूज करते हैं या ईयरफोन यूज करते हैं, देन आपको इस तरीके का अगर 2 ही मैसेज मिलता है तो आपका एग्जामिनेशन ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है कि किसी तरीके का वार्निंग मैसेज आपको ना मिले। उसके लिए क्या है कि आपका मॉक टेस्ट शेड्यूल किया गया है 29, 30, 31, ठीक है ना। तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कैसे एग्जामिनेशन देना है, कैसे सिटिंग करना है, क्या क्या चीजें यूज करनी है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। तो वो आपको मार्क टेस्ट में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए आपका जो 29, 30, 31 को मॉक टेस्ट शेड्यूल किया है गया है, दिस इज द कंपल्सरी अटेंडेड बाय यू। ये आपको इसको अटेंड ही करना है किसी भी हालत में, ताकि क्या कहते हैं कि आपको फाइनल एग्जामिनेशन में इस तरीके का प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो अभी थर्ड केस जो चल रहा है आपका कि एडिशनल पर्सन अगर आता है तो इसको भी अगर ये आपका क्या है कि 2 टाइम्स सेम, अगर ये एडिशनल पर्सन का मैसेज आपको 2 बार आता है कि क्या होता है कि अगर एडिशनल पर्सन आता है या फिर आप स्क्रीन की तरफ ना देख करके स्क्रीन की साइड में किसी से बात करते हुए दिखते हैं, ठीक है ना। ऐसा अगर होता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, वो पर्सन स्क्रीन के सामने नहीं है लेकिन आप कंटिन्यूअस किसी से बात कर रहे हैं, तो भी वो एज ए एडिशनल पर्सन ही काउंट होगा और आपको सेम वार्निंग मिलेगा। और सेम अगर इस तरीके की 2 वार्निंग मिलती है, देन यू आर ब्लॉक्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, एनी डाउट स्टूडेंट्स? Okay, student, if you have any doubt at any point, then you can ask your question. Okay. So now, the 4 type of problem C. A person other than designation examination as shown in the photograph on the hall ticket is seen attempting the examination. You will book for the serious malpractice for the imperfections in the examination if person other than designated exam in notice in the screen again, ठीक है ना। इसमें क्या है कि अगर ये आपका तब है जब क्या कहते हैं कि आप घर से एग्जाम नहीं दे रहे हैं, पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट से दे रहे हैं। मतलब अभी जो एमएसबीटी ने किया है कि हो सकता है कि आपके साथ आपकी कंडीशन ऐसी हो कि आपके पास स्मार्ट डिवाइस नहीं हो या फिर आप स्मार्ट डिवाइस परचेज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, देन देयर इज अ ऑप्शन दैट यू विल गिव योर एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहते हैं कि ऐसी फैसिलिटी है कि आपको अगर आपका अ, जो होम इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हैं वो आपके घर से काफी दूर है, ठीक है ना। देन क्या है कि आपके नियर बाई जो भी पॉलिटेक्निक होगा, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट होगा, आप वहां पे जाकर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और वहां पे कोई ऐसा पर्सन आपकी स्क्रीन में नजर आता है जो कि एथोराइज्ड नहीं है, एथोराइज्ड नहीं है। जैसे क्या कहते हैं कि आप अगर इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं तो सुपरवाइजर रहेगा, अगर सुपरवाइजर के अलावा कोई और आपकी स्क्रीन में बार बार नजर आ रहा है, देन दिस इज द सीरियस ऑफेंस, ठीक है ना। और ऐसा क्या कहते हैं कि होने पे आपको तुरंत ही एग्जामिनेशन ब्लॉक कर दिया जाएगा। पनिशमेंट क्या है, 1+0 मीन्स ये आपको एक ही बार अगर ऐसा होता है तो भी आपका एग्जामिनेशन ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द रिगार्डिंग द वार्निंग मैसेज। जो 4th नंबर का है वो फॉर द इंस्टीट्यूट लेवल, अगर आप इंस्टीट्यूट में एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो। और आपका फर्स्ट 2-3 पॉइंट क्या है, इफ यू गिविंग योर एग्जामिनेशन फ्रॉम द होम, ठीक है ना। तो अभी आप सबसे क्या कहते हैं कि
आप सभी लोगों से क्या कहते हैं कि एमएसबीटी का सर्वे फॉर्म फिल करवाया गया है कि आप लोग फ्रॉम दी होम एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या फिर इंस्टीट्यूट में देना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर इन केस आपके पास प्रॉपर डिवाइस नहीं है, फ्रंट कैमरा इनेबल डिवाइस नहीं है, ठीक है ना, तो देन इट इज रिक्वायर्ड यू गिव योर एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो आपके नियर बाई कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, आप वहां पे एमएसबीटी आपको सेंटर प्रोवाइड कर देगी, यू कैन गो देयर एंड गिव योर एग्जामिनेशन, ठीक है। वहां पे प्रॉपर आपको लैब मतलब पीसी और एनेबल फ्रंट कैमरा एनेबल पीसी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और वहां से आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? तो ये आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का डेट्स है, ठीक है, फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स ईयरली एंड सेमेस्टर पैटर्न, ठीक है ना। और ये आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए है 10 जनवरी टू 15 जनवरी, एंड रेगुलर के लिए 3 जनवरी टू 12 जनवरी शेड्यूल्ड है, ठीक है ना। और एमक्यूसी बेस्ड थ्योरी एग्जामिनेशन आपकी 18 से स्टार्ट होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? सर हाँ बोलिए। सर हमें एग्जाम का टाइम टेबल ग्रुप पर सेंड कर देंगे? हाँ, एग्जाम का टाइम टेबल ऑलरेडी शेयर है, आपको फिर से मैं शेयर कर देता हूँ। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर ड्राइंग का पेपर कैसे होने वाला है? ड्राइंग का पेपर आपका क्या कहते हैं कि वो सब्जेक्ट टीचर पे डिपेंड रहेगा, आपका एमक्यूसी टाइप में नहीं रहेगा, सब्जेक्ट टीचर आपका, आप सब्जेक्ट टीचर से कांटेक्ट करिए ड्राइंग के पेपर के लिए, एमसीक्यू सर बेस नहीं ये रहेगा वो। सर ये प्रैक्टिकल एग्जाम इंस्टीट्यूट में आके देने का है कि होम पे? नहीं नहीं, आपका क्या कहते हैं कि जो सब्जेक्ट टीचर रहेगा ना, जैसे क्या कहते हैं कि आपने लास्ट टाइम दिया होगा वैसे ही एग्जामिनेशन होगा, गूगल मीट के थ्रू या फिर जूम के थ्रू। प्रॉपर क्या कहते हैं कि 2 2 3 3 स्टूडेंट ज्वाइन होंगे, अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर टाइम प्रोवाइड होगा, उसमें उनसे क्वेश्चन आंसर होगा। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको कैमरा ऑन करके रखना है ताकि आपका प्रॉपर फेस एग्जामिनर को दिख सके, जो भी सब्जेक्ट टीचर है। मींस कुछ सब्जेक्ट आपके जो रहेंगे इंटरनल प्रैक्टिकल है, कुछ का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है, तो उसमें क्या है कि आपका ये गूगल मीट या फिर जूम पे आपका एग्जामिनेशन होगा और पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में स्टूडेंट स्लॉट रहेंगे, 3 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट एट अ टाइम रहेंगे, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको क्या कहते हैं कि अपना कैमरा ऑन करके रखना है ताकि आपका प्रॉपर फेस विजिबल हो और आप ही एग्जामिनेशन दे रहे हैं ऐसा उसमें होना चाहिए, ठीक है। कैमरा ऑफ करके एग्जामिनेशन नहीं देना है आपको, ठीक है। लास्ट टाइम जैसे हुआ था वैसे ही एग्जाम होगा आपका प्रैक्टिकल का, गूगल मीट के थ्रू या फिर जूम के थ्रू होगा। एनी अदर क्वेश्चन? आपको आप में जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन है कोई ऐसा है जिसने क्या कहते हैं कि एमएसबीटी का सर्वे फॉर्म फिल नहीं किया है या फिर उसको उसने रिप्लाई नहीं किया है कि उसको आईडी पासवर्ड रिसीव नहीं हुआ है? अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है देन यू हैव टू रिप्लाई बोथ कि आपने एमएसबीटी का फॉर्म फिल किया है कि नहीं, सर्वे फॉर्म, या फिर आपने क्या कहते हैं कि आपको आईडी पासवर्ड रिसीव हुआ है तो भी आपको मैसेज करना है, आईडी पासवर्ड रिसीव नहीं हुआ है तो भी आपको मैसेज करना है। इन बोथ केस यू हैव टू ड्रॉप अ मैसेज इन द ग्रुप। एनी क्वेश्चन?
देशमुख सर. मिश्रा सर. हाँ. हाँ, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन हो गए तो प्रोसीड कर दो. Okay, ठीक है स्टूडेंट. इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन लीव द मीटिंग. अगर क्या कहते हैं कि आपका कोई डाउट है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन टू द सब्जेक्ट टीचर कि आपका पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा, आपका सबमिशन किस डेट पे करना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए. देन यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट टू सब्जेक्ट टीचर. ओके. अगर आपको कोई डाउट है राइट नाउ देन यू कैन आस्क रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, वो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो या फिर थ्योरी एग्जामिनेशन हो. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि आपको आईडी पासवर्ड रिसीव होना चाहिए. अगर आईडी पासवर्ड आपको रिसीव नहीं हुआ है देन यू कैन रिप्लाई ऑन द ग्रुप so we can arrange your ID password who is not receiving their ID password on their mobile phone. Okay. So अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है देन यू कैन लीव द क्लासरूम. थैंक यू.